everyone. I am Yagnesh Dalwadi. I am faculty at Department of Business Studies, Sardar Patel University, Vallabh and I am in the teaching profession since last 23 years. And I do teach accounting, finance, taxation, and other research methodology and other subjects. So, and I'm also a president of ISTD Anand. And as you know that we have organized a case study summit in a January 22nd, 23rd. And you must have got the brochure. To get more case study, we have planned such kind of helping webinars as well as workshop for the participants so that they can write the right case and can help to the students, right? So today we are going to learn about the case study writing, how to write the case and how to get the case lead from where to start, right? And then we'll find out that what type of information you should give so that student can solve the case easily and learn many things. So let me start. And before I start, I would like to ask many questions. As you know that there may be many trainers and many academicians are listening this online webinar. So I want to ask many things. First of all, if I ask you that what are your ultimate goal of a classroom teaching, you do teach in a classroom or in a training sessions. What are the ultimate goal? Ultimate goal is your performance. Whenever a student or participants participate in any training program or any classroom, our objective, they should perform well in a market, perform well in the field, right? So that is the ultimate goal of any classroom teaching. And why the student or learner comes to the classroom or learner comes to the training program? Because he want to change the behavior and he want to have certain set of skill. He want to inculcate certain set of skill. But I want to ask a question. Do you think your teaching is successful because of your classroom teaching? I mean to say that अगर हम उसको सिखा रहे हैं तो वो ऐसे ही मार्केट में परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है? Do classroom teaching gives a particular set of skills that the person or the student can use it in a professional or personal life? The question is, the answer is right thing. You can understand that whatever we do teach in a classroom are a theoretical, and when it comes to practical, the theory and practice are not matching, and that's why unemployment problems and that problems are going on, right? And what are the when you teach? Second question: when you teach or when your teacher teach those who are student, right? What are the constraint and difficulty you face while teaching? The teaching when we do teach to the student, you know that the boredom and they do not want to they do not connect with our concepts because they see different in a market, and whatever we teach in a classroom are quite different, and that's why the connection between student and teachers are not there. Participation is not there. When we do take lectures in a monologue, when where teachers or trainer or a presenter presents and the students learn, right? And these are the difficulty. Every teacher are facing such kind of difficulty, right? And attention and interest are a worry problem for all of us, because student, if you take any attendance of any classroom across India, I don't think 100% or 80, 90, 20, 100% attendance you get.
you get very less number of students are going to the classroom. The reason may be many, but one of the reason they don't have interest, and when they do not have the please, Vishaka Conche, please mute your mic, right? So because of lack of interest, their attention ratio goes down, right? And last question, whatever do we teach, is it helpful in their professional life? If we ask your subject, whatever you are teaching at a master level or at a UG level, does it help directly to perform in the market? The answer is almost no, right? Why? Because whatever we do teach in a classroom are theoretical. When it comes to the market, it is very practical, right? Result oriented, where different set of skills are required. Suppose I am teaching corporate accounting. Let me give my example. I am teaching corporate accounting, where the student required to prepare a statement of profit and loss account and balance sheet and this and that. But when it comes to the market, they will not able to prepare the balance sheet, because the vouchers and everything, all set of informations will be different when he goes to the market. Then whatever do we teach in a classroom, that is not going to help, right? And that's why this case study, it helps us to bring out something new. So let me briefly give you that what is a case. So generally in a case study, we give a problem that need to be solved by the student by applying whatever the theoretical knowledge they are getting, right? So in a case, a factual story about the actions that have happened in the past that prompts the reader to make a decision or to perform the analysis or evaluation. So with the help of evaluation and analysis, he has to take a decision which already happened and which is a fact. If you combine all that, it becomes a case, right? It becomes a case. And when we write a case study and the student solve the case study, definitely many skills they are going to develop, right? So complete publishable case is which have these characteristics, plus we give the instructors manual. It means that what teachers required to do, what background information a student should read before solving this case, everything, and how and teaching strategies plus solutions of the same. If we are giving, so it becomes a publishable case. So we have to write a case, we have to develop a manual to solve the case, and is a publication, it becomes a publishable case, right? So I have already pointed out that in a traditional pedagogy like lecture method, chalk and talk method, it's nowadays it becomes a very irrelevant, broken, and students are not able to concentrate because they don't have the interest in that, right? So what is case study? What is case study? So case study is basically a true story. First thing, whenever you think that I want to write a case study, make sure that it's a true story. It is not a hypothetical. Is when you use that hypothetical things in your study, then it is a caselet, not a case study. It becomes a caselet that tells you the events occurring to time that happened, whatever the happened, in the sequence wise, you need to narrate it, and how the managers had deal with it, whatever the problem, how they deal with it. If we are writing and able to write in a piece of paper, then it becomes a case, right? And case study present the realistic situation. For example, manager has to start or has to introduce new product or not. That question is, they should introduce a new product or launch a new product or not.
yes or no. In this case, in this situation, a researcher has to narrate things that the manager already going through. It means that whatever the background information of manager, it should be there, and the student should acquaint the all information and should able to judge, able to forecast, able to solve the problem and come out with the result whether they should launch a new product or not. Such kind of realistic situations, if you call, then it becomes a case study. So that skill we need to inculcate, and it should show in our case study. So whatever the reader of a case, they have to be a problem solver. He should be in a problem solver's shoes, right? Whether to take decision or not, right? That problem they need to solve. They should able to solve the problem. And generally, I always use that. Generally, the student of our classroom cannot go to industry or company to company because lack of time and everything. But the case study is a medium where industry or market or the economy come to a classroom, right? So so we cannot bring, or we cannot help our student to go to the industry, but industry is coming to your classroom, and that's why case study is very, very essential pedagogy, and we need to learn. And why do we write a case study? Case study हमको क्यों लिखना है, right? To apply the theory into a practice. So generally in a classroom we do teach theory. You need to do this and you need to do that, right? But how to do that skill, and how to develop that problem solving mind, it is not with the classroom studies, right? We write a case study to learn the real life, to understand and the inculcate the diagnostic, right? The problem, generally we do not give the problem. Sometimes the case study, certain case study, the student need to identify the problem, what the problem is, right? And how to analyze the case, what type of problem, how severe it is there, right? And what type of decision making, what type of decision the person or the reader should take, that kind of skills we need to inculcate in our students. And that's why case studies are required. And let me tell you, we have conducted such case study workshop for 3 times, and we have come out with the book also. Those were wait those who were participants of the workshop, they have written a case, and we have the book also that is available in Amazon also, the case studies in commerce and management, right? And the basic idea of this case study summit and writing case study, that vocal for local, our local case and our local people should be identified, and whatever the problem solving technique that conducting, and summit also we are conducting. Now, suppose you are thinking about writing a case study. You want to write a case study. So before how to write a case study, let me give you what type of case you can write. The first case is analytical approach, analytical case where you give everything to the reader, right? Everything. For example, how a successful entrepreneur, Mr. XYZ is, right? So what are the what he did and what he not did, what type of problem he has faced and how he has come out, everything you narrate it. And later stage, the student required to identify the what are the qualities of a successful entrepreneurs,
and if something is happened, then how how the person has come out, and what are the problems they have solved, and what type of problem the entrepreneurs are facing. Everything is narrated in a analytical approach, right? So a successful entrepreneur, about the institute is flourish in your region. What are the reasons, and they have done it. If you narrate everything and if you give all the explanation in the case, it becomes an explanatory or exploratory case studies, and we called it as an analytical case, where everything is given and student or reader have to identify what are the qualities and what are the things is going on. And second type, which is very important and which required any teacher required to give such and write the case study and should give case to solve, is a problem oriented case study. Problem oriented case study where the problem is given at particular time, problem is given. Am I audible? Yes, sir. So in case if this disconnected, we will connect again. Because this time we are getting a comment that this meeting will get over. Hello, am I audible? Yes, sir. Hello. Yes, sir. You are audible, sir. Okay. So in a problem-oriented case study, certain problem, we need to identify what type of problem we need to solve, right? So generally, we should focus on this problem-solving skill, right? Analytical study, anybody can write, many information you need to give, and the student identify that the qualities and everything, right? And problem-oriented, where we discuss the problem and how to sort out the problem, how to solve the problem. That problem-solving skill we can develop through this. So generally, we should focus on type 2 approach of case study, right? Keep in mind, it means that you should keep in mind that successful case study analyze the real life situation. It should not be hypothetical. Real life means whatever happening around you, that should come in a piece of paper where existing problem need to be solved, and it cannot be hypothetical or fictional. A case study cannot be hypothetical or fictional. If it is a hypothetical or fictional, it is considered as a caselet, not case study, right? Now, case study can help. Dalwadi sir, I just wanted to interrupt. The meeting will get over in 2 minutes time. Dalwadi sir, to the all participants, this meeting will get over in 2 minutes time. We need to join it again to have 40 minutes slot. This we are getting error by today only. Okay, so whenever you go out, then again, please join. Yes, sir. So in a case studies, yes, case studies can help the student to develop following skills, because skills, if we are not able to develop the skills, then definitely we are bombarding with the information, and student do not able to apply such knowledge in a solving the problem or getting success in a business or in their field, professional field. So what are the skills that develop by the case studies? First of all, you should identifying and recognize the problem. Is there any problem or not? Certain cases discuss and student not able to identify what sort of problem it is, right? So that problem identification and problem recognizing skill a student can develop. Then understanding and interpreting the data. In a case study, we give the data, we do not give the analysis. We give the data, and student is required to understand the data and interpret and apply in their present problem, right? So they are able to understand and interpret the data.
understanding and recognizing the assumptions. See, certain things is the student has to take his own stand. He has to make own assumptions. He has to make own inferences. He has to bring out own skills, and then apply. He need to apply in the present case. So he can judge or can assume something where the information is lacking to go to the solving the problem, and thinking analytically and critically. So every aspects he will think analytically and critically whatever the problem is given in a case study. तो एक डिमांड आई है कि आप हिंदी में भी थोड़ा बोलिए. Okay, so I am trying in both the languages. So understanding and assessing the interpersonal relationship. Student need to understand the relationship between one variable to another variable. जैसे हमको मान लो कि गोल्ड प्राइस का प्रिडिक्शन करना है, तो whether we should buy a gold or not. So for that we may have many informations like crude oil price and dollar और रुपीस का जो रेट है वो, और कैसे जाता है क्रूड ऑयल प्राइस, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ती है. अगर वो रिलेशनशिप अगर एक एस्टैब्लिश करे और समझ ले, तो स्टूडेंट कैन एबल टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर प्राइस ऑफ गोल्ड, राइट. लेकिन हम ऐसा नहीं सिखाते. हम इन अ क्लासरूम हम क्या करते हैं कि भाई गोल्ड प्राइस अगर मतलब ये सब होगा तो गोल्ड प्राइस बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, पर्टिकुलर सीजन में बढ़ता है कि नहीं, हाउ द स्टूडेंट कैन कम आउट, राइट. तो ऐसे जो रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स, ही कैन आइडेंटिफाई. देन एक्सरसाइजिंग एंड मेकिंग ए जजमेंट. ही नीड टू टेक ए जजमेंट, राइट, व्हेन ही गोज टू द इंडस्ट्रीज. एक अभी 5 बजे भी एक टीचर मेरे पास आए थे और उनका जो साइकोलॉजी था, तो साइकोलॉजी में कैसे केस स्टडी लिखा जाए. तो साइकोलॉजी में जो एक क्रिटिकल केस हो, जहां साइकोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लम हो, एंड वी कैन नरेट ऑल द थिंग्स एंड व्हाट स्टेप्स दे हैव टेकन एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस, दे कैन राइट इट डाउन, राइट. तो it means that in all field we can write, and for that we need to make certain judgments, right. Judgments हमको लेना पड़ेगा. इसके लिए जो एक्सरसाइजिंग एंड मेकिंग जजमेंट्स के हिसाब से कुछ फ्यूचर का एजम्पशंस करके वो डिसीजन ले पाएगा, राइट. तो ये स्किल हम डेवलप कर सकते हैं. देन कम्युनिकेटिंग आइडियाज एंड ओपिनियंस. सो ही हैज टू मेक द प्रेजेंटेशन, whatever the results or whatever the decision उन्होंने लिया है, उसका क्या करेंगे, कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ये है वो है, राइट. एंड मेकिंग एंड डिफेंडिंग द डिसीजन, एंड व्हाटएवर द डिसीजन ही हैज टेकन, ही हैज टू डिफेंड. अगर जो दूसरा जो स्टूडेंट है अगर बोलता है कि ये आई एम नॉट बिलीविंग इन दिस डिसीजन, आई एम गोइंग अगेंस्ट दिस, तो the student has to defend the decision by giving all the supporting documents or all the supporting facts rather, right. तो ये सब जो स्किल है, अगर केस स्टडी अगर हम लिखते हैं जो हम हर रोज पढ़ाते हैं और स्टूडेंट को देते हैं, तो इतनी स्किल जो लेक्चर मेथड में गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशंस नहीं आती है, वो सब हम डेवलप कर सकते हैं. मींस स्टूडेंट का जो ओवरऑल है वो डेवलप कर सकते हैं. तो जब हम केस स्टडी सिलेक्ट करते हैं, राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं किस पे केस लिखूं, राइट, कौन से एरिया पे केस लिखूं, राइट. तो ये बहुत बढ़िया, मतलब ये बहुत सबसे ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम वहां है कि मैं कहाँ केस लिखूं, किस पे केस लिखूं, कैसे केस लिखूं तो अलग बात है, लेकिन कहाँ मैं केस लिखूं. दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एनी केस राइटर, राइट. तो उसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, राइट. पहला तो आपको ये सोचना है कहां लिखूं, वो अलग बात है, वो मत सोचो अभी. राइट नाउ यू थिंक के आप जो क्या मैसेज पास करना चाहते हो, क्या स्टूडेंट को लर्न करवाना चाहते हो, राइट, क्या उसका लर्निंग होगा, राइट. उस पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लो कि मुझे कॉस्ट
पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, मान लो कि ये मेरे पास एक स्प्रे है, मान लो ये मेरा स्प्रे है, उसका पर्टिकुलर कॉस्ट मुझे कैसे निकालेंगे उसको सिखाना है फॉर एग्जांपल, राइट। तो मुझे ये कॉस्टिंग का है, मतलब अकाउंटिंग में कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्टिंग का मुझे एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को सिखाना है। तो लर्निंग इज ए कॉस्टिंग, मतलब ए पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा मुझे वो सिखाना है। दैट स्टूडेंट शुड लर्न दैट हाउ टू डिटरमाइन ए कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, राइट, वो सिखाना है। तो वो जो लर्निंग है, स्टूडेंट लर्निंग, वो हमको पहले देखना पड़ेगा। तो आप जो भी टीचर्स है या जो ट्रेनर्स है, थिंक फॉर योर स्टडीज, जहां आप टीच कर रहे हो, राइट, तो उसको आप फील करो कि क्या सिखाता हूं मैं, व्हाट आर द टेक होम, उसको केस लीड करो, वहां वो कैसे समझा सकते हो, वो इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई होता है, कहाँ समझा सकते हो। एक एग्जांपल मैंने ये दिया कि ये स्प्रे का पर यूनिट प्राइस मुझे कितना रखना है, राइट, वो डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट कैसे डिसाइड करेंगे वो मुझे सिखाना है, राइट। या कोई बैंकिंग में है तो पर इंश्योरेंस या पर कस्टमर कितनी कॉस्ट ले जाए वो सिखाना है, राइट। मान लो कि कोई कंसाइनमेंट सिखाता है, कॉमर्स में कंसाइनमेंट सिखाता है, तो कंसाइनमेंट में वो जो ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं और उसका रिकॉर्डिंग कैसे होता है वो सिखाना है, राइट। वैसे सब फील्ड में कुछ इवेंट हुआ, राइट, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन का, दोज हु आर टीचिंग एचआर, तो उसका सिलेक्शन का है प्रॉब्लम, आपको सिलेक्शन मेथड सिखाना है या सिलेक्शन प्रोसीजर सिखाना है, राइट, एंड किस बंदे को सिलेक्ट करना है वो सिखाना है। तो you want to inculcate that skill in the student के how to select a good employee, right, that is the student learning। वैसे आपके फील्ड में मुझे पता नहीं, इकोनॉमिक्स में फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी रिमूव और ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ उसको कैसे घटाया जाए, तो व्हाट आर द वेज टू डिक्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। तो दैट इज अ स्टूडेंट लर्निंग। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक लर्निंग क्या लर्न कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ किस पे केस लिखूं, वी नीड टू थिंक कौन सा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर सकता हूं, राइट, कौन सा आइडिया है जो, मतलब ये केस लिखूं तो ये कॉन्सेप्ट उनको आ जाए। एग्जाम्पल में यही अभी एग्जाम्पल आए, तो ये इसकी कॉस्ट मुझे कैसे डिटरमाइन होती है, वरना हम क्या पढ़ाते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्टिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, राइट, कौन सी अफेक्ट है, तो कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसका इमेज क्या है, ये सब देखना है, राइट। ऐसा थ्योरी सिखाते हैं। या कॉस्टिंग का अगर लिया जाए तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और सब कॉस्टिंग हम ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं और बाद में सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं। तो जनरली हम ये सिखा देते हैं, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं है कि पर्टिकुलर डस्टर, पर्टिकुलर चौक, पर्टिकुलर चार्जर, पर्टिकुलर मोबाइल की कॉस्ट कैसे डिसाइड करें। तो यू कैन राइट ए केस स्टडी ऑन दिस। ये जस्ट एक आइडिया है, वैसे ही हमारे पास हजारों आइडिया है जो स्टूडेंट लर्निंग हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई इसकी कॉस्ट कैसे निकाल सकता हूं, तो सब जो इसके जो रॉ मटेरियल है, क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है वो मैं नरेट करूंगा कि इतने इतने रॉ मटेरियल है और इतने इतने सप्लायर्स है रॉ मटेरियल के, राइट, उनकी क्वालिटी क्या है वो सब मैं बता दूंगा। तो उसके हिसाब से स्टूडेंट क्या करेगा, जो अच्छी क्वालिटी और सस्ता होगा उसको कलेक्ट करेगा, उसके लिए नेगोशिएशन जो भी करना है, डिस्काउंट कैसे होता है वो सब नरेट कर दूं। लेबर फॉर एग्जांपल, तो लेबर की इंफॉर्मेशन दे दूं और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सपेंस की वो सब दे दूं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे करेंगे उसको सब नरेट करूं, और बाद में बताऊं कि इसके लिए 1000 प्रोडक्ट हम पर मंथ करने वाले हैं, काउंट उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट पहले काउंट करो और 20% प्रॉफिट चाहिए तो कितना सेलिंग प्राइस होगा। तो इंस्टेड ऑफ
लुकिंग एट द थियरी, वो थियरी नहीं देखेगा कि उसको तो पता ही है कि कॉस्ट के लिए मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब ओवरहेड कॉस्ट चाहिए, लेकिन ही विल कैलकुलेट इट पर्टिकुलरली एंड देन ही विल रिमाइंड के कॉस्टिंग कैसे करते हैं। तो कभी भी उनकी जो फॉर एग्जांपल नई शॉप है या कुछ भी है, कितना प्राइस रखना हो तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उसको आ जाएगी, दैट स्किल विल बी डेवलप। तो हमको क्या करना है, क्या हम सिखाना चाहते हैं, राइट। डिसीजन मेकिंग में भी रिक्रूटमेंट किसकी करे, इसका हो सकता है। साइकोलॉजिकल केस है तो कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसका है। कॉस्टिंग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, राइट। कहीं जगह फ्रॉड हो गया है तो फ्रॉड डिटेक्शन कैसे करें, राइट, हाउ टू डिटेक्ट द फ्रॉड। और वो सब आप अपना जो लर्निंग है वो पहले डिसाइड कर सकते हैं कि इतना लर्न करना चाहिए और उसका ये क्वालिटी है, एंड देन यू शुड गो फॉर द इंडस्ट्री पर्सन और पर्टिकुलर प्लेसेस वेयर समथिंग हैज हैपन एंड विच कैन बी ब्रॉट इन अ क्लासरूम, राइट। वो सब लिख के उसका केस बना के हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू थिंक अबाउट स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट को क्या हमको सिखाना है, वहीं से केस लीड स्टार्ट होगा। इंस्टेड ऑफ मिस्टर एक्स पे लिखूं या ये इंस्टीट्यूट पे लिखूं कि ये टॉपिक पे लिखूं, वो टॉपिक पे लिखूं, डोंट थिंक दैट, गो डू व्हाट लर्निंग्स यू वांट टू टेल। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत हमारे जो टीचर्स हैं उनको आइडिया दिया है कि फॉर एग्जांपल हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम एक चैप्टर है अकाउंटिंग में। तो जनरली हम क्या कहते हैं कि हायर परचेज सिस्टम क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ये लेके आते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व है तो कैसे उसकी एंट्री पास की जाएगी और कैसे उसका अकाउंट्स बनाया जाएगा, दैट वी डू टीच इन अ क्लासरूम, राइट। इतना ही हम क्या करते हैं, सिखाते हैं कि इतना। तो बाद में स्टूडेंट को क्या है, एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम्पल आता है कि XYZ हैज परचेज एसेट ऑन हायर परचेज मेथड एंड ये इंटरेस्ट है, ये सब इंफॉर्मेशन दे देती है। स्टूडेंट यूज टू कैलकुलेट, यूज टू रिमेंबर ऑल द जनरल एंट्रीज और वो लिख देता है। बट इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन मेक ए केस स्टडी, उसकी केस स्टडी हम बना सकते हैं इन अ रियल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने हायर परचेज पे बैंक से कुछ लिया हो तो उसकी सब डिटेल हम देख सकते हैं, दे सकते हैं, राइट। जैसे अलग अलग बैंक का अलग अलग प्रोडक्ट्स होगा, हायर परचेज के लिए अलग अलग टर्म्स कंडीशन होगी और उसमें सिलेक्शन पहले करेंगे वो कौन सा होगा, उतना उनका उसको वो चांस देंगे। देन ही हैज टू सिलेक्ट ए वन बैंक और उसकी टर्म्स कंडीशन पे वो कौन सी टर्म्स कंडीशन है, उसका पेमेंट कैसे हो रहा है और वो सब डिटेल जब क्लोज भी हो जाता है तो पूरा डिटेल आप ले लो और बाद में स्टूडेंट को बोलो कि ये सब हुआ है, उसकी एंट्री आपको बनानी है और आपको कोई इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव हायर परचेज सिस्टम कौन सा है वो आपको दिखाना है। तो व्हाट विल हैपन, दे विल लर्न एक्चुअली कि मुझे हायर परचेज पे लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट। तो आई मीन टू से दैट वी नीड टू फोकस ऑन स्टूडेंट लर्निंग फर्स्ट। वो अगर हमको आ गया कि ये सिखाना है और उसको बाद में मार्केट में जाके, बाजार में जाके या किसी केस डिस्कस करके प्राइमरी डेटा से या सेकेंडरी डेटा से हमको केस लीड लेनी है, राइट। then we'll have to identify that will it be engage the student engagement होगा, मतलब स्टूडेंट का इंटरेस्ट जागेगा, इसमें बातें करेंगे और एंगेजिंग होगा कि नहीं वो हम देखेंगे। वो कैसे एंगेज होगा, जब वो रेलेवेंट हो, लाइव हो। देखो फॉर एग्जांपल मैंने XYZ प्रोडक्ट जो बाजू में है जो मैन्युफैक्चर करता है उसका ही एग्जांपल लिया तो दे कैन रिलेट कि भाई नहीं ये कंपनी का ही हम कर रहे हैं। So that student engagement will be there. Whether the case is achievable achievable case focus, it means that जो हम idea वो जो कर रहे हैं वो हम exactly वो रख पाएंगे कि नहीं piece of paper में, जो decision लेना है वो और जो convey करना है वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वो हमको देखना है। And will it be loved? Student
पार्टिसिपेट करके उसमें अपना आइडिया दिमाग लगा के कुछ कर सकते हैं क्या, कंक्लूजन तक आ सकते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट नॉट एबल टू मतलब फाइंड आउट द सॉल्यूशन, उनको प्रॉब्लम भी पता ना चले और सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी ना पता चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बहुत सपोर्ट से हमको सब इंफॉर्मेशन उसकी देनी पड़ती है। तो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट लर्निंग। नाउ अभी एक इंटरेक्शन हम करते हैं, राइट? तो आप ऐसा सोचो, देखो अभी आई एम गिविंग यू चांस टू वेदर इट इज अ केस लीड और नॉट, राइट? तो थिंक अबाउट द बिजनेस इवेंट्स और स्पेशल हैपनिंग्स that you have read about or you have heard about recently. आजू बाजू जो हो रहा है, आजू बाजू जो इवेंट हुई है, बिजनेस इवेंट या स्पेशली हैपनिंग्स है, जो आपने पढ़ा है या देखा है या सोचा है या समझा है, ऐसा कोई भी इवेंट आप डिस्कस कर सकते हो। थिंक अबाउट दैट नाउ इन अ चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट, आप अनम्यूट करके आप आइडिया, आप शेयर योर आइडियाज फॉर ए केस, राइट? चैट में लिख सकते हो और बोल सकते हो कि इस पे मुझे लिखना है, ये हो सकता है क्या, राइट? समथिंग हैज हैपेंड, मैनी थिंग हैज हैपेंड, राइट? हर रोज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज चैनल को देखते हैं, फेसबुक पे या यूट्यूब पे ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है, राइट? सो जो भी आपने सोचा है, राइट, कैन यू राइट ए केस और नॉट? तो यू कैन शेयर, अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हो। देन सर्टेन आइडियाज और सर्टेन जो आपने जो डिसाइड किया है, वेदर इट इज बिकम ए केस लीड एंड कंप्लीट होगा या वो वहीं खत्म हो जाएगा, राइट? सो यू कैन राइट इन ए चैट बॉक्स ऑल्सो, या अपनो अनम्यूट करके वो लिख सकते हो, बिकॉज योर पार्टिसिपेशन से पता चलेगा कि वेदर यू आर गेटिंग दैट पॉइंट और नॉट। ओमनीक्रॉम, राइट? वन SRM Maria has written Omnicrom. So this is the event has happened, right? So now Omnicrom. So some medical practitioner can create a case if there are different variant of a virus or multiple mutant of the case अगर होता है तो डज इट स्प्रेड होगा कि नहीं होगा, इसकी इफेक्ट ज्यादा होगी कि नहीं होगी, तो वो केस लीड हो सकता है। बट पर्टिकुलरली आप मेडिकल फील्ड में हो तो, फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए ये ओमनीक्रॉम विल अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी और नॉट, राइट? तो पिछले पेंडेमिक से सब कलेक्ट करके हमको जज करना है कि होगा कि नहीं, या उसका कम इफेक्ट हो तो इसके लिए क्या, तो सब इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, तो लायंस, मनोज भाई हैज रिटन लायंस क्वेस्ट लाइफ स्किल प्रोग्राम फॉर एडोलेंसेस, राइट? तो लाइफ स्किल प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, राइट? वो इफेक्टिव है कि नहीं, राइट? वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट, तो उसके लिए जो प्रोग्राम है उसका आइडिया दे सकते हैं, और बाद में जो इफेक्ट हुई है वो दे, स्टूडेंट विल एबल टू जज वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। फ्यूचर डिजिटल करेंसी, दीपक राठौर सेड फ्यूचर डिजिटल करेंसी, लेकिन हमको देख अगेन अपना जो मूल आइडिया है कि व्हाट वी ट्राई टू कन्वे, हमको कौन सी स्किल या कौन सा लर्निंग देना है, उस पे फोकस करना पड़ेगा, राइट? ओमनीक्रॉम फॉर एग्जांपल वायरस आया है, नया वायरस आया है, स्प्रेड होगा कि नहीं, कितना होगा, क्या होगा, कॉस्टिंग क्या निकलेगी, तो वो हो सकता है। हितेश पटेल सेड इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइस अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी, राइट? तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस और इसकी इम्पैक्ट कहाँ पड़ सकती है, राइट? पास्ट में कहाँ पड़ी और अभी फ्यूचर में किस पे ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे, और उसके लिए स्टूडेंट आप केस बना सकते हैं और स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि इन दिस सिनारियो
सपोज योर बिजनेस इज देयर और योर ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, उसके सर्वाइव के लिए क्या स्ट्रेटेजीज करनी पड़ेगी। तो ये सब इंफॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करते हो तो ये फ्यूल प्राइस को कैसे कॉम्पेंसेट किया जाए, क्या किया जाए, वो आप केस लीड कर सकते हो, राइट। सो लेकिन इसमें इतना होना चाहिए कि आप सेकेंडरी डेटा इतने अच्छे तरह से प्रोवाइड करें कि उसको उसका एनालिटिकल एनालिसिस करके स्टूडेंट कैन कम आउट द प्रिडिक्शन, कैन प्रिडिक्ट एंड कैन गिव यू ए स्ट्रेटेजी इंस्टेड ऑफ मतलब इन्फ्लेशन पढ़ाए बिना उनको ही पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं इन केस ऑफ दिस, राइट। तो हम ऐसा कर सकते हैं। सो इफ यू आस्क मी, I can find the case lead from anywhere which available to me, right? For example, management का chapter है, right? So many must have learned the management. तो पहला ही chapter है planning, for example, planning, right? तो you can create a case where the how to plan, राइट। तो आपको डिटेल दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल मैरिज प्लानिंग, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन आपको प्लानिंग में कुछ और बिजनेस रिलेटेड करना हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो मान लो कि मैरिज का प्लानिंग करना है, मैरिज कहाँ होस्ट करना है, तो राइट। तो यू कैन गिव ए ऑडियंस द वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल मैरिज हॉल कितने हैं और पार्टी प्लॉट कितने हैं, या खुली स्पेस कितने हैं, क्या क्या कॉस्टिंग है, कब कब बुक होता है, क्या क्या होता है, राइट। तो ये सब है। तो आप ये पूरे मैरिज के लिए इतना इतना उसकी रिक्वायरमेंट है आपका क्लाइंट की, यू आर गोइंग टू फुलफिल सच, हाउ यू आर डूइंग प्लानिंग, आप प्लान क्या करोगे, कैसा ध्यान रखोगे, क्या रखोगे। तो स्टूडेंट कैन कम आउट विद द सॉल्यूशन कि भाई ऐसा ऐसा हो तो इतना इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये होगा तो वो होगा, ऐसा होगा। तो कैलकुलेशंस, कॉस्टिंग, ये सब मिला के, फॉर एग्जांपल फूड कॉस्ट होती है और मैरिज के जो होता है, लेन देन जो होता है, तो वो सब मिला के एक केस बन सकता है, राइट। तो इन अ प्लानिंग ऑल्सो यू कैन हैव ए प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल पिकनिक प्लानिंग, पिकनिक की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, तो यू कैन नरेट समथिंग एंड प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे हम लीड कर सकते हैं और उसका केस बना के प्लानिंग कैसे करना है, प्लानिंग का कौन सा फंक्शन है वो नहीं सिखाएंगे, प्लानिंग का स्टेप्स है वो नहीं सिखाएंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे वो सिखाएंगे। तो टेक होम विल बी प्लानिंग कैसे करेंगे, राइट। सो Muktanand says cost of modifying existing petrol vehicle to electric vehicle, right। तो ये भी पहले तो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं टेक्नोलॉजी, राइट। अपना जो पेट्रोल है उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल करना है तो पॉसिबल है कि नहीं, इसका कॉस्ट कितना था, इतना इसका कॉस्ट कितना आएगा, पेट्रोल का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो प्लगिंग होगा कि नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन देके कितना कॉस्ट आता है, वेदर वी शुड गो फॉर इलेक्ट्रिक और जो भी पेट्रोल है वो चलाओ, राइट। तो सब इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन हमको देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, एनालिसिस हम नहीं करेंगे। एंड देन स्टूडेंट हैज टू ऑप्ट वेदर ही इज गोइंग टू कीप दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल और द पेट्रोल व्हीकल, राइट। तो ऐसे कहीं और हमने जो वर्कशॉप रखे हैं इसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं समझाने जा रहा हूं। तो जो राइट, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो हम पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट। एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर। क्या करेंगे, कोई भी केस होगा वो ओपनिंग हुक होगा। ओपनिंग हुक में क्या होगा कि हम शुरुआत करेंगे, शुरुआत हम करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, सर्टेन प्रॉब्लम इज देयर, राइट। जैसे मेरा जो केस स्टडी है जो IIM में और हार्वर्ड में जो रजिस्टर हुआ है वो गुजरात फिशरीज पे है। एंड गुजरात फिशरी
Gujarat Fisheries is hello. Am I audible? Clear, sir. Please Yes, continue. Yes, Okay. sir. Yes. Okay. So the opening is like the manager, Mr. DM Patel, is worried about the loss occurring from fisheries business, and he is thinking much about how to make this loss-making segment to profit-making segment, और he is very confused. और ये कंपनी का वो जनरल मैनेजर है, तो he is confused. तो ओपनिंग हुक में हम क्या लिखेंगे कि हम बैकग्राउंड देंगे कि what sort of things a students need to solve, problems क्या है, कैसा है, क्या सोचते हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. इसका डिटेल में मैं बाद में अभी देने वाला हूं. देन ये स्टार्ट होने के बाद यू कैन गिव इंडस्ट्री ओवरव्यू. मतलब ऐसा जो इंडस्ट्री है इसका ओवरव्यू देखें, ताकि जो रीडर है उसको पता चले कि इंडस्ट्री में ऐसा ऐसा हो रहा है. एंड यू कैन टॉक अबाउट द कंपनी स्टोरी. कंपनी कहाँ स्टार्ट हुई, क्या क्या उसकी टाइमलाइन है, क्या क्या जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो डिसीजन मेकिंग के लिए है, वो सब आप एनेक्चर में दे सकते हो, इन बिटवीन दे सकते हो, लेकिन इसका एनालाइज नहीं करोगे आप. ऐसा रो डेटा आप उनको दे सकते हो. तो एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू कर सकते हो और उसको लिखना है, और कंपनी की स्टोरी आप दे सकते हो, उसका बैकग्राउंड लिख सकते हो, क्या यूनिक है, क्या क्या सक्सेस उन्होंने पाया है, क्या क्या फेल्योर पास्ट में भी होगा है, वो देखेंगे. एंड वन मैनेजर, वन लाइव पर्सन विल बी देयर who is taking the decision, and that live person कौन होगा, जो डिसीजन मेकर है. और जब केस सॉल्व होगा तो स्टूडेंट ये समझेंगे कि वो मैं हूं, वो मैनेजर मैं हूं. तो उसके लिए यू नीड टू डिस्क्राइब द ह्यूमन एलिमेंट, राइट. आपको वो ह्यूमन एलिमेंट जो सोच रहा है, कंफ्यूज है और डिफिकल्ट हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करे क्या नहीं, डायलेमा वो जो पर्सन को होता है, वो सब आपको नैरेट करना है, राइट. एंड देन प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है उसका सिम्टम देना है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे हो रहा है, सेल्स घट रहा है या ये बढ़ रहा है या कॉस्ट घट रही है, इसका ये प्रॉब्लम हो रहा है. ये सब आपको जो प्रॉब्लम्स जो फोकस करना है उसकी सब डिटेल आपको वहां देनी होगी. और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी ये कंफ्यूज है एंड यू नीड टू, मतलब he want to take a good decision, what you need to do, हम क्या करेंगे, ऐसा करके ये क्लोज कर देंगे. जो कॉम्पैक्ट केस होता है तो पहले ओपनिंग लिखे देंगे, इंडस्ट्री ओवरव्यू, कंपनी की स्टोरी लिखेंगे, मेन प्रॉब्लम जो जहां से वो लीड करेगा, डिस्कस करेगा, एनालाइज करेगा, वो सब होगा, और बाद में वो क्लोज कर देंगे. और जो इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल एनुअल स्टेटमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स के स्टेटमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, तो एम्प्लॉय की पूरी प्रोफाइल हम अलग अलग एम्प्लॉय की प्रोफाइल हम दे सकते हैं. या कुछ कॉस्टिंग के लिए होता है तो अलग अलग जो सप्लायर है उसकी इंफॉर्मेशन एनेक्चर में और एग्जिबिट्स में दे सकते हैं, राइट. और चार्ट देख सकते हैं, डायग्राम दे सकते हैं, कुछ फोटोज भी देख सकते हैं, टेबल भी देख सकते हैं, वो सब है वो एग्जिबिट्स में रहेगा. तो ये पूरा जो भी पब्लिश होगा वो होगा, और बाकी का हमको यहां से लिखना होगा, राइट. तो आगे बढ़ते हैं कि ओपनिंग हुक में शुरुआत कैसे करें. तो 5W and 1H हमको आंसर करना है. Who was involved? Mr. X was involved, who is a manager. What has happened? Loss making है. Why did this happen? Because of competition or because of price rising or because of petroleum का products ये बहुत महंगा हो गया है. What or when did it happen? Right now या before 1 month, या जो timeline है वो एग्जैक्ट देनी है. Where did it happen? ये कंपनी में हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, या ये जगह हुआ, राइट. हाउ डिड इट हैपन, कैसे हुआ कि ध्यान नहीं रखा, कुछ नहीं रखा. तो ये ओपनिंग हुक है, इसमें ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमको देना है, और उसका भी एक पैराग्राफ लेस देन 100 वर्ड में हमको कंप्लीट करना है, राइट. फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ओपनिंग हुक था जो IIM में है, वो मिस्टर DM पटेल इज worried about
the loss making segment of the Gujarat fisheries. He tried a lot to do the loss making into profit making, and he's also thinking about the pricing, increase in the price of fishes, right? But right now he is not able to take decision and he is in dilemma. तो ये ओपनिंग हुक हो गया. वैसे ही आपके फील्ड में जो भी है, राइट, फॉर एग्जांपल कोई हायर परचेस का मैंने जो बताया उसको कंटिन्यू करता हूं मैं. हायर परचेस का आपको सिखाना है कि हायर परचेस ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं और कैसे लिखते हैं. तो मिस्टर और XYZ लिमिटेड is want to take a particular machine or plant on a hire purchase system, and the manager Mr. XYZ is confused about selecting the company or the banks or the financial institutions, and how he will write a entry and how he can reduce the cost of hire purchase. तो ऐसा करके आप अपना मटेरियल पहले तैयार कर सकते हो. तो स्टूडेंट जो रीड करेगा उसको पता चलेगा कि हायर परचेज का इसका प्रॉब्लम है, उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी जगह से मतलब हायर में लेना है और कौन सी प्राइस पे लेना है, कौन सा कॉस्ट कटिंग वाला होगा, उसको पता नहीं है. ओके, तो वैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, राइट. तो यहां कैसे स्टार्ट करना है वो है, यू शुड नॉट स्टार्ट विथ ए ओपनिंग हुक. ये बाद में लिखना है एक्चुअली, लेकिन ओपनिंग हुक में ऐसा आता है. तो जनरली व्हेन वी आर राइटिंग ए केस स्टडी, वी शुड राइट फर्स्ट, व्हाट वी राइट फर्स्ट, इंडस्ट्री ओवरव्यू. आपको इंडस्ट्री का ओवरव्यू, क्योंकि इंडस्ट्री को आप एनालाइज करेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम का नजरिया भी थोड़ा थोड़ा चेंज होगा. आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि देयर आर लॉट मैनी कंपटीशन, राइट, ऐसा नहीं कर सकते. आप देखेंगे कितने कॉम्पिटिटर हैं, बाद में आपको पता चलेगा इसके पास कोई कंपटीशन नहीं है, या आपको उसके दे डोंट हैव एनी कंपटीशन, और बाद में मार्केट में जाके आप इंडस्ट्री का ओवरव्यू, देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स एंड मेनी थिंग्स अवेलेबल. तो आप उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप आ सकते हो इफ यू आर गिविंग इंडस्ट्री ओवरव्यू. फॉर एग्जाम्पल जो हमारे मित्र हैं वो रुथवी सिस्टम है, राइट, उनका बिजनेस कैसे आगे लिया जाए उसका कंफ्यूजन है. फॉर एग्जांपल वो प्रॉब्लम लेके दे वांट टू सॉर्ट आउट के व्हाट पॉसिबल चीजें कर सकते हैं. तो जैसे ये जो सिस्टम है, जो कैमरा हिडन जो कैमरा होता है उसकी जो सिस्टम है, यहाँ आनंद में कितने वो सप्लायर हैं और वो कितने लार्जर नंबर पे हैं और कितना सेल्स है उनका, राइट, कितना मैन पावर है. अगर ये पता चले तो हमको पता चलेगा कि हमको ओपनिंग क्या करना है और आगे क्या करना है. तो ये इंडस्ट्री ओवरव्यू इज रिक्वायर्ड, पहले हम करेंगे. या वी कैन स्टार्ट विथ कंपनी स्टोरी, कंपनी का ये कि ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, उसका बैकग्राउंड, वो पहले हमको कलेक्ट करना पड़ेगा व्हेन वी आर एक्चुअली राइटिंग ए केस स्टडी, राइट. तो नेक्स्ट वो प्रॉब्लम क्या है हम लिखेंगे, बाद में ये प्रॉब्लम है, उनका ये कंफ्यूजन है, दे डोंट हैव सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये ज्यादा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, या ये हो, जैसे भी हो आप नरेट कर सकते हो, उसका प्रॉब्लम लिख सकते हो. देन यू कैन डेपिक्ट द एग्जिबिट्स. इसके लिए क्या कर सकते हो, तो इंडस्ट्री ओवरव्यू, कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है वो आप दे सकते हो, टेबल, डायग्राम्स, चार्ट, टाइमलाइन, जो भी है वो आप एग्जिबिट्स में देख सकते हो. तो आपके पास क्या होगा, इंडस्ट्री कैसा है, कंपनी का कैसा है, प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम कैसा कहां तक प्रॉब्लम है, वो आपको ये पता चलेगा. देन यू कैन स्टार्ट द ओपनिंग हुक. आपको बाद में शुरुआत करनी है, शुरुआत से नहीं लिखना है. बाद में आपका जो वर्डिंग्स है, जो आपका थिंकिंग है, जो आपका जो प्रॉब्लम है, वो मेनी टाइम्स इट चेंजेस. तो बाद में हम लिखेंगे ओपनिंग, एंड देन वी विल क्लोज. लास्टली वी राइट ए क्लोज. सर्टेन क्वेश्चन रेज करेंगे ताकि जो रीडर है वो आइडेंटिफाई करे और उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करें, राइट. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेन यू वी राइट ए केस स्टडी, और वो भी कॉम्पैक्ट केस होगा, मतलब बिग केस नहीं की बात कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट केस होगा, तो कितने वर्ड्स में हमको समेट लेना है. ओपनिंग हुक जो इंट्रोडक्शन हम देते हैं अबाउट द प्रॉब्लम, लेस देन 150 वर्ड्स, राइट.
less than 150 words. It can be increased by 50 words if the problem is bigger and you want to give all sort of information. Industry overview less than 50 words. उनकी कंपटीशन कौन कौन से है, कैसे है, ये 50 वर्ड्स में आपको वो समेट लेना है. ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यू यूज एग्जिबिट्स. रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना है जिससे ये डिसीजन स्ट्रॉन्ग बने और डिसीजन मेकिंग हो सके. कंपनी स्टोरी वो भी लेस देन 50 वर्ड्स में लिखना है कि क्या क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ही देना है. मैनेजर्स जो बोल रहा है उसको क्या सोच रहा है, क्या स्टेटमेंट्स दे रहा है, लेस देन 100 वर्ड्स. राइट, वी कैन यूज कोट्स, quotation कि I am fed up with this business and I don't want to continue this business, that manager's dilemma. So we can write that. और फॉर एग्जाम्पल ये कॉस्टिंग की बात आती है, राइट, ये प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की बात आती है, तो ही इज कंफ्यूज अबाउट कॉस्टिंग एंड आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट हाउ टू डिराइव दिस कॉस्ट एंड दैट प्रॉब्लम यू कैन नैरेट इट एंड देन यू कैन फोकस ए प्रॉब्लम, राइट, दैट इज ए 500+ words. That is biggest part of the case where you actually narrate that the sales is decreasing and this and that. वो आपको जो प्रॉब्लम जो सिखाना है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन देनी है वो 500 वर्ड्स में होगा. और क्लोजिंग हुक विल बी अगेन लाइक ओपनिंग हुक, 1 लेस देन 150 वर्ड्स में आपको कंप्लीट कर देना है और मे बी 2, 3 और 10 सेंटेंस में आपको वो कंप्लीट करना है. And exhibits, there is no limit, only relevant exhibits it should come. So if you write a case, itna dekh ke effective, if you are writing, then it will become a good case. Now, while writing a case, there are some conventions जो हमको बहुत ध्यान में रखना चाहिए. पहले तो जो भी केस लिखेंगे ना वो past tense में होगा, right? This has happened, this, except quotes, quotation that I will not continue this business forever, ऐसा कुछ होता है तो हम वो टेंस चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज इन अ होल केस स्टडी पास्ट टेंस विल बी यूज्ड कि ऐसा हुआ है, वो ये सिचुएशन है, यहाँ की वो सिचुएशन है, वो पास्ट टेंस में लिखना है. ओके, नो पर्सनल प्रोनाउन दैट दे हैव इज नॉट मिस्टर XYZ हैव, पर्सनल प्रोनाउन नहीं आएगा. ओके, no analysis in case. This is very important point of the case study. Case study में हम सब analysis करके नहीं आएंगे, नहीं देंगे. जैसे इसकी ये स्प्रे की कॉस्ट हमको निकालनी है तो हम कॉस्ट पर यूनिट या उसका मटेरियल कॉस्ट नहीं बताएंगे. अलग अलग कौन सा मटेरियल यूज होता है, पर्टिकुलर इसके लिए कितना यूज होता है, तो वो कैलकुलेट हम दे देंगे अलग अलग. द स्टूडेंट नीड टू कैलकुलेट एक्चुअली द कॉस्ट, राइट. हम कोई एनालिसिस नहीं करेंगे. जैसे कैमरा घूमता है, जैसे IIM में था तो हाउ स्टूडेंट द टीचर यूज्ड टू मेक अस अंडरस्टैंड कि क्या लिखना है. जैसे कैमरा जाता है तो कैमरा एनालाइज नहीं करता है, जो है वो दिखाता है. तो वी हैव टू बी लाइक ए कैमरामैन. जो हम कैमरा घुमा रहे हैं तो क्या दिख रहा है उस पे ही हमको आइडेंटिफाई करना है. तो वी नीड टू बिकम ए कैमरामैन रादर देन एनालिस्ट. तो जो है वो हमको नैरेट करना है, उसका एनालिसिस नहीं करना है. और एनालिसिस अगर है तो हमारे जो टीचिंग नोट होगी इसमें हम एनालिसिस करेंगे. यूज हेडिंग फॉर हेल्प रीडर्स. हेडिंग्स आप यूज कर, यूज हेडिंग टू हेल्प द रीडर्स. हमको हेडिंग करना है इंडस्ट्री ओवरव्यू, सेल्स, राइट, और व्हाट हैज हैपन, राइट, क्या हुआ है, मार्केट सिचुएशन क्या है, कंपटीशन क्या है, व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल. ऐसे हम हेडिंग्स दे सकते हैं ताकि जो रीडर है वो समझ सके कि ये इसकी इंफॉर्मेशन दी है. वो ऐसे टाइप कंप्लीटली नो पैराग्राफ या नो हेडिंग ऐसा नहीं होना चाहिए. जनरली हमको हेडिंग के साथ आगे बढ़ना है. हेडिंग वी कैन गिव इट, राइट. एंड यूज एप्रोप्रिएट साइटेशंस फॉर स्पेसिफिक डेटा और कोट्स. अगर आपने कोटेशन लिया है या स्पेसिफिक डेटा लिया है तो वो सोर्स कहाँ से है, कहाँ से लिया है. इफ यू हैव टेकन फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट, यू राइट डाउन एनुअल रिपोर्ट, या किसी भी वेबसाइट से लिया है या किसी डेटा स्टोर से लिया है, तो यू राइट डाउन ए स्पेसिफिक डेटा सोर्स. वो साइटेशन आपको वहां करना पड़ेगा.
अवॉइड पिक्चर्स अनलेस इट्स सो इम्पोर्टेंट। स्मॉल केस स्टडी में आप पिक्चर ज्यादा यूज नहीं करना है, डेटा का जो टेबल आप ज्यादा यूज कर सकते हो। एग्जिबिट हेल्प मेक द की पॉइंट फॉर विजुअल लर्नर, मतलब एग्जिबिट्स आप रख सकते हैं, इसमें भी की पॉइंट्स आना चाहिए। सब इंफॉर्मेशन जो इररिलेवेंट है वो ज्यादा नहीं देना चाहिए। हाँ, लार्ज मतलब बिग केस है, आप अलग अलग देख सकते हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट ले लेगा। एंड कैन क्रिएट इश्यू विद द परमिशन राइट्स। माइंड वेल, whenever you are writing a case study on particular person or particular organization or particular company, you need to take permission and get it right। मतलब ये मैं लिख रहा हूं, आप मुझे परमिशन दिए और रिटर्न में वो परमिशन आपके पास होनी चाहिए। और बिफोर यू क्लियर द केस उनको दिखा देना है कि इतना इतना मैंने लिखा है। अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो यू हैव टू रिमूव दैट पार्ट ऑल्सो, राइट, जो डिस्प्यूटेबल है और द पर्सन वांट टू हाइड समथिंग, राइट। इन केस ऑफ लार्ज केस और बिग केस तो वो ध्यान में रखना है। तो आपको परमिशन लेना है, पहले आपको जाके परमिशन लेना है कि इस इंडस्ट्री में, बिकॉज दिस इज ए रियल लाइफ एग्जांपल वी आर गिविंग, राइट। तो वो परमिशन का पार्ट आपको देना पड़ेगा। अगर पूरा लिख लिया, बाद में हायर अथॉरिटी परमिट ही नहीं कर रही है, तो यू कैन नॉट पब्लिश दिस केस स्टडी, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। केस स्टडी लिखते वक्त क्या क्या हो सकता है, व्हेन यू राइट ए टाइम रेफरेंस, राइट, तो डोंट राइट दैट दिस डेकेड और 2 years ago यू आर करंटली, ये नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, यूज स्पेसिफिक डेट, ईयर, मंथ, कब क्या हुआ, एग्जैक्ट डेट। अगर वो हैपनिंग हुए, एग्जैक्ट डेट हुआ है, तो वो एग्जैक्ट डेट लिखा करो, ताकि जो है स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई द टाइम होराइजन और इस बीच में क्या हो सकता है वो। देन अनडिफाइंड ट्रेंड अगर है, फॉर एग्जांपल हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो नहीं लिखना है। आपको प्रोवाइड करना है कि कितने कितने ट्रांजैक्शंस कब हुआ है, आपको दे देना है। तो हाई है, लो है, स्टूडेंट काइंडली म्यूट योर माइक, स्टूडेंट विल डिस्कस। एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शन है या नहीं है, हाई प्राइस है या लोअर प्राइस है, वो नहीं बताना है, प्राइस का आपको दे देना है, तो वो समझेंगे कि हाई प्राइस है या लोअर प्राइस है। या कंपेरेटिव चार्ट दे देना है कि इतने द प्राइस है तो ये हाई है या लो है, राइट। लैक ऑफ सपोर्टिंग डेटा, फॉर एग्जांपल XYZ बिल्ट ए सिग्निफिकेंट कस्टमर बेस। सिग्निफिकेंट मींस व्हाट, कैसे हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट कस्टमर बेस, हमको वो सिग्निफिकेंस मतलब क्या है, कितना ज्यादा है या कम है, वी नीड टू क्लैरिफाई, ओके। तो वो हमको सिग्निफिकेंट है वो नहीं लिखना है, लेकिन क्या क्या है, तो स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई वेदर इट इज सिग्निफिकेंट कस्टमर बेस और नॉट। सर्टेन टाइम वी यूज अनफेमिलियर टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है अनफेमिलियर होती है, पता नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सर्कुलर इकोनॉमी, if you write circular economy as this you are writing in your case, but students are not able to understand what circular economy is. So what you need to do, you need to give a proper definition of the certain terms, or you can use a diagram to mention that circular economy ये होती है, right, ताकि उसको जो familiar हो जाए वो problem से। लैक ऑफ साइटेशन ऑफ डेटा, 88 मिलियंस ऑफ वर्किंग एडल्ट्स, ऐसा नहीं लिखना है, आपको दे देना है कितना एडल्ट्स है, वो साइटेशन भी आपको देना है, रिक्वायर्ड साइटेशन कहाँ से है, कौन सा सोर्स है, वो स्पेसिफिक आपको एड्रेस दे देना है जहां से ये इंफॉर्मेशन ली है। आपको वो इतना हमको क्या करने का, ध्यान रखने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ह्यूमन एलिमेंट शुड कम। ह्यूमन एलिमेंट को इसका कंफ्यूजन होना चाहिए, किसका भेजा फ्राई हो गया हो ऐसा होना चाहिए, या कंफ्यूज स्टेट में, या डिप्रेस स्टेट में, या नॉट एबल टू फाइंड आउट समथिंग, राइट। वो स्टेट में जो होता है वो ह्यूमन एलिमेंट अंदर आना चाहिए, ताकि जो रीडर ऑफ द केस है वो ऐसा समझे कि वो मैं ही हूं जो कंफ्यूज हूं, राइट। तो फॉर दैट यू कैन गिव ए कोट्स, ओके। or student are more engaged in real people who are live in the case, right, उनको जिंदा रखना है, उनको confuse जो है वो उसको bring करना है।
कौन से सोर्सेज से आप लेंगे ये सब डेटा? तो न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी विल बिकम लीगल इन इंडिया और नॉट, और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यू कैन टेक ए कोटेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर जो रिसेंटली दिया है, या प्राइम मिनिस्टर, या जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फॉरेन जो है डीलिंग करते हैं, उनके जो स्टेटमेंट है आप ले सकते हो और अंदर अपना डाल सकते हो, राइट। लोकल न्यूज़पेपर जो है, गुजरात समाचार, वो सब जो डेटा देते हैं वो आप ले सकते हो टू सपोर्ट द क्रिप्टो करेंसी, अगर आप इस पे लिख रहे हो, राइट। वीडियो क्लिप्स फ्रॉम यूट्यूब एक्सेट्रा यू कैन टेक, स्पीचेस एंड यू कैन कॉल, और जो भी है वो आप ह्यूमन एलिमेंट ऐड करना है। फैक्ट्स कहाँ से लाएंगे आप? प्राइमरी सोर्सेज, इंटरव्यू ले सकते हैं, जैसे कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसका इंटरव्यू लो, राइट। उसका जो फील्ड ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिव डेटा, फोकस ग्रुप, इंटरनल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, राइट। जो भी सेल्स के रिकॉर्ड्स हुए, प्रोडक्शन के रिकॉर्ड्स हुए, कॉस्ट के रिकॉर्ड्स हुए, अलग अलग पेरोल का जो है, वो आप प्राइमरी सोर्सेज यूज कर सकते हो। एंड क्यूसी प्राइमरी सोर्सेज लाइक एक्सटर्नल वीडियोस, ट्रांसक्रिप्ट, राइट, testimony, archive, social media, you can use in this case. And secondary sources you can use newspaper जो आपके घर आता है वो, right, magazines, books, industry report, external records, ये सब आप मिलके आपका केस डेवलप कर सकते हो। क्लोजिंग हुक में क्या रखेंगे? एट द एंड ऑफ केस बाय रिमाइंडिंग स्टूडेंट द की इश्यूज, हम की इश्यू फोकस करेंगे, वेदर ही शुड डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट और नॉट, whether he should try to help the company from loss making to profit making or not, whether it should be cryptocurrency should be part of Indian economy or not, right, such issues, right। तो ये की issues लास्ट में हमको बताना है। एंड कॉल फॉर एक्शन, देन मतलब वो वॉइस आनी चाहिए कि आपको अभी क्या करेंगे, राइट। तो क्या कर सकते हैं वो उनके दिमाग में रहेगा। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जो ये क्लोजिंग बुक में हमारा लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बट why I and Raju Rathod are very interested in such case summit, and why we need to have a pedagogy of case studies, because I am earning from whatever case I have written. You can see that case center office of IIM is paying royalty to me, and every year I am getting royalty. You can see this royalty. I am not mentioning this figure, but they are providing and they are being taught. And then we thought that why our student in a new education policy should not develop that skill like this, and that's why we have initiated this program. Now, any question that you have, I will take, and I will then talk about the next program. Any question or anything that you want to share, that you can share. And in a workshop, we are going to have a detailed discussion whether you can lead it or not, whether you have written that is good or not. We will try our best to get a good case lead and good case study. So any question from any participant or any suggestion rather, you can give it. You can unmute and you can give it. Please, anybody? किसी को कुछ? Okay. So the next program, see, we are having this case summit. For next program, next Friday forum will be of Dr. Raju Rathod. He will discuss about case study interdisciplinary and experiential learning को plus करके कैसे लिया जाएगा, वो 6 बजे होगा हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को। सेम लिंक है, लेकिन लिंक अभी चेंज कर देंगे हम। एंड 11-12 दिसंबर ऑफलाइन वर्कशॉप हमने रखा है, वहां हाउ टू राइट ए केस स्टडी, उसका जो डिटेल है, मतलब डिटेल में कैसे कहाँ जाना है, पर्टिकुलर आप केस लेके आएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका हम डिस्कशन करके वन टू वन डिस्कशन करके वो करने वाले हैं। ये जो रिसोर्सेज जो मैंने यूज किए हैं वो रेबेका मॉरिस के हैं,
जो चीफ एडिटर इन चीफ है द केस जर्नल के, उनका मैंने ये ज्यादातर रिसोर्सेज का यूज किया है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेम. आई रिक्वेस्ट Raju Rathod to say something about the case study summit and next move. Yeah, thank you Dr. Yagnesh Bhai. It was a wonderful sharing of the whole process of writing a case. Actually, this particular effort is a part of a bigger efforts what we are doing, that students and faculty will write cases on a local aspect, right? What the theme of our case summit, which we are going to do in a January 22-23 January 2022. So there will be 2 days case summit in which we invite the cases all over the country, and there will be offline as well as online national case summit organized by Indian Society for Training and Development and Vittal Udyog Nagar GIDC Association. So both of us, in a collaboration doing this. As a part of this was the first program. So what we expect from there were 42 participants earlier, and now because of that second timing enrollment, few have not joined. But what we wish that all of them will at least decide the title of their case and let inform to us. So, and also like Kamini madam and other experienced faculty are also there. So we are also going to have, even Suresh Bhai is also there. So we are going to have a team of a mentor. So if students submit their case title, then not only on 11-12 December when we have an offline workshop, but on a continuous basis, we will be helping the students, and it's like a hand holding and skill development thing, right? So this entire process not only lead us for a publication, but also inculcate the skill of writing among the students. So this is what the entire process which we are following. And in the same line, next week I am going to address on using case study for experiential learning across the different discipline and all such aspects. So I hope you will all be a part of the entire process. And ISTD Rajkot, ISTD Ahmedabad, ISTD Vadodara, they are all our collaborative chapters, and they also organizing such workshop at their places also on offline basis. So over there also, if you have some PhD students, you can let them know that they should be the part of the process, so they will definitely learn. Yes, over to Yagnesh Bhai. Raju Bhai has rightly mentioned that to make this everything successful and to give a productive output for our students and for our education system, we need a mentor. And many of you are experienced faculties like Deepa Ben, Kamini Ben, and many are other there. So we definitely need help to rather suggest the topic and help in getting a good case study. So next we are planning to have a meeting with all the mentors who directly will give the suggestions and will come out with a very good idea, and definitely we can change the system that we are in, right? And it is a need of an hour. So I request those who have attended, they will definitely join as a mentor, but those who are not attending this, so we may request them and they can give their services as a mentor. So thank you very much all of you for presenting, for attending this session, and definitely we look forward for your participation in a next Friday forum also. Thank you very much.